Hello and a very warm welcome. Thank you, Muskan, for joining in. And today we 10 are 10 10 10. Wow, if you are watching. 10 or 11 हो गया. Today we are reading about how to separate tasks from this beautiful book, The Courage to be Disliked. And let me quickly share my screen so that we can read together. All right. So, how to separate tasks? Philosopher. Say there is a child who has a hard time studying. He doesn't pay attention in class, doesn't do his homework, and even leaves his book at school. Now, what would you do if you were his father? Youth. Well, of course, I would try everything I could think of to get him to apply himself. I would hire tutors and make him go to the study center, even if I had to pull him by the ear to get him there. I would say that's a parent's duty. And that's actually how I was raised myself. I wasn't allowed to eat dinner until the day's homework was done. Philosopher. Then let me ask you another question. Did you learn to enjoy studying as a result of being made to do it in such a heavy-handed manner? Yeah. So so I want to before we go ahead, I want to ask you, if you had a child and that child would have been in this situation कि वो study नहीं कर रहा है, exams आ रहे हैं, he's not paying attention in the class, doesn't do his homework, even leaves his books at school, what would you do? In my place, I will say that I'll ask that child that don't do if you don't like. अच्छा, are you sure? Yeah, I'll do this. What you say? Because now, example, right now, I am a student, I'm studying, my parents are asking me, Muskan, how many pages you have learned? हम सुन लेते हैं जो पढ़ लिया है, they are like this. And मैं Hmm. पढ़ाई किसी की कर रही हूँ अपनी पीजी की. Still they are doing like this to me, and they are treating me like a little one. So when we leave the child on their own, they एक टाइम आता है when child also knows that कि ये तो पूछ ही नहीं रहे हैं. उनको child को एक guilt होता है एक. And when that guilt comes, the child asks why I have to study. Hmm. And वहां से कुछ अंदर से जागता है, और वो जब जागता है तो वो हो जाता है काम, rather than वो. Absolutely. What would you say for the children, for the kids, not as big as you, but for the kids who are 10th के एग्जाम्स देने हैं, 12th के एग्जाम्स देने हैं, अभी बुक्स ही स्कूल के लॉकर में छोड़ के आ गई है, तो what will you do? In the very starting, because child does not know the outcome, does not know the future to be built, the parent will say अपनी friend से notes मंगवा लो, study. मैं बैठती हूँ साथ में. Like what my mother used to do, वो ना हमेशा एक न्यू डायरी कॉपी रखती थी. She used to write, मतलब अब तो नहीं ऐसे पढ़ाते ना वो मेरे को जैसे बचपन में, बट आई रिमेम्बर शी ब्रिंग अ न्यू कॉपी, शी राइट ऑल द चैप्टर्स, एंड शी सेड मेरे को ये चैप्टर सुना दे, एंड शी यूज्ड टू टिक मार्क. शी हम्म. ऑलवेज हैव दिस हैबिट, मतलब बचपन से ही. एंड आई रिमेम्बर जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी ना, शी ब्रॉट द नोटबुक ऑफ 3 in 1. हाँ हाँ हाँ, मैथ्स इंग्लिश और हिंदी की होती थी. सीरियसली. एंड शी गिवन मी 2 pencils, और उस पर शक्कर लक्का बूम बूम था, न्यू शॉर्पनर, न्यू रेजर, एंड एज अ चाइल्ड आई वाज लाइक वाओ. Excited about studying. So I can लेकिन resonate. मेरे को पीट पीट के पढ़ाया था ABCD. मेरे को ये भी याद है. I remember, I understand what this philosopher is asking him, because मेरे बच्चे अभी 9th और 11th में हैं. It's a very crucial time for them to study. But throughout the year, while they were not studying, what was I doing? कोई बात नहीं, मत पढ़ो, मत पढ़ो. अभी उनको ये लगना शुरू हो गया कि भाई ये खुद तो पढ़ती जा रही हैं, इनको टाइम नहीं है, ये कह रही है ठीक है भाई अपनी मर्जी है तुम्हारी, यू आर मेकिंग योर ओन करियर.
It's your choice whether you want to study or not. And all of a sudden, what I see is भाई अपने आप ही पूरी पूरी रात बैठ के पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, नाम लाइक यार सो जाओ बस, बहुत हो गया, क्या हो गया आज, क्या हो गया आज, कोई नया दिन है। एंड आई लव दैट वे। आई लाइक इट व्हेन यू सेट एन एग्जाम्पल फॉर द किड्स, एंड हम्म। यू डोंट हैव टू पुश देम टू स्टडी। दे टेक देयर ओन इंटरेस्ट कि हाँ यार इसका एग्जाम है, अभी इसको पढ़ लेती हूँ। एक तो प्रेशर अर्जेंसी का भी है कि भैया एग्जाम सिर पे आ ही रहा है, तो अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। बट वेन दे स्टडी, देन दे स्टडी इन फुल डिवोशन। दे डोंट नो कि अभी रात को मैं 11 बजे बैठी थी, सुबह के 6 बज गए हैं। दे जस्ट डूइंग इट। तो लेट्स सी व्हाट डज द फिलोसोफर शेयर। देन फिलोसफर आस्क्ड अनदर क्वेश्चन कि आप एंजॉय कर भी रहे थे विद द हैवी हैंडेड मैनर में आपको, तो मैं आई वाज इन द मॉर्निंग सेशन वाज टेलिंग दैट हाउ व्हेन आई वाज सपोज टू गेट मैरिड आई वाज 52 किलोस, एंड माय मॉम यूज्ड टू टेल मी कि तू बहुत मोटी है, तुझको क्रॉस ट्रेनर पर चढ़, तू एक्सरसाइज कर। शी वुड स्टैंड देयर बाय द क्रॉस ट्रेनर कि खड़ी हो, चढ़ इसके ऊपर, चढ़ इसके ऊपर, एंड आई यूज्ड टू लिटरली eyes would मतलब tears were rolling down my cheeks. I still remember that कि मुझसे जबरदस्ती करवा रहे हैं, मुझको नहीं करना है, ये नहीं वो नहीं। एंड 2 किलो तो कम हो गया, 50 किलो की हो गई शादी से पहले। बट मैंने दिल से किया क्या? नहीं, मेरे को जैसे फ्रीडम मिली आई वाज लाइक हाँ मजे से जिंदगी जियो, जो मर्जी करो अभी, अब कौन बोलेगा मुझको चल 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 चल। With this respect, ना I remember when I was an intern in ICU, you people मतलब जो वहाँ पे सीनियर डॉक्टर्स थे ना, they used to say me मोटी हो गई है। एंड वो मुझे जब ऐसे बोलते थे ना, मैं अपने मन में सोचती थी, मैं कहा मैं तो ब्यूटीफुल हूँ, ये मुझे मोटी बोल रहा है। एंड सच्ची में। एंड पता है वो इतना ज़्यादा मेरे अंदर वो थॉट चला गया। मैंने ना पहले तो अपने मन को समझाने की कोशिश करी, मुस्कान सर्दियों का टाइम चल रहा है, यू हैव पुट लेयर्स, जैकेट वगैरह पहनी हुई है इसलिए तुझे लग रहा है। मैं अपने आप से बोल रही थी ये। एंड विद इन 2 to 3 weeks मैंने अपने आप को बोलना शुरू कर दिया मैं सच्ची में मोटी हो गई हूँ। एंड एज वी नो दैट देर इज फिटनेस mentor also in KZU. I asked them, keep a record of me and I want to get patla because it is included in the membership. And she said, okay, let's start. मेरे को अभी का वेट बता दो, टारगेट वेट बता दो. This is the BMI, body mass index, and you have to calculate. मैं कहा ठीक है। मेरा 77 था, करते करते वो 69 हो गया विद इन 1 मंथ। मैंने लिटरली खाना नहीं खाया था, सिर्फ सैलेड और वो चिया सीड्स वाला पानी, डिटॉक्स वाला पानी। एंड मैं मेरे को चाय बहुत पसंद है। एंड द कोच ओवर देयर शी यूज्ड टू से मी खाली पेट चाय नहीं पीनी। मैं कहा मार दो। So the thing is, whatever we do in the pressure, we don't enjoy it and we cannot sustain it throughout our lives. So you should have a lifestyle in a way, पढ़ाई हो, weight loss हो, कुछ भी हो, it should be flow state में होना चाहिए, right? यस। You should be able to. So my mom, I was telling my mom, मैंने ना 5,000 steps इस पूरे हफ्ते हर रोज चले हैं, and my mom is like 5,000 steps, 10,000 तो पापा ही चल लेते हैं, 20,000 your brother walks। मैंने कहा तो मेरे लिए तो 2,000 हो रहे थे, मेरे तो 5,000 हो गए, आई एम ग्लैड, आई एम हैप्पी। एंड देन टुडे शी वाज आस्किंग मी, तूने तो कभी बताया नहीं हाउ मेनी स्टेप्स आर यू वॉकिंग। आई सेड दिस वीक आई एम गोइंग टू वॉक 5,500 स्टेप्स एवरी डे। एंड she okay, then she didn't say anything। पापा 10,000, भाई 20,000। Let me do things at my own pace that I can continue doing forever। यस। छोटे छोटे स्टेप्स, आई तो ऑलवेज बिलीव छोटे छोटे स्टेप्स लेके चलो सो दैट प्रॉब्लम। Like I was into the fitness challenges also in that uh, Shanathon and all. And वहाँ पर I collab with people जो फिटनेस पे काम कर रहे थे। सो आई केम टू नो देर इज वन लेडी हु 62 years old एंड शी इज रनिंग 32,000 स्टेप्स इन अ डे एंड आई वाज शी वाज अ विनर। तब जाके मुझे पता चला था। एंड आई वाज लाइक 32,000। मैंने कहा मेरे तो इतने होते ही नहीं। मैंने कहा मैं इनसे बात करती हूँ। मैंने उनका फ़ोन नंबर, मैंने उनको मैसेज किया, मैं कहा मैं आपसे फ़ोन कर लूँ। एंड शी सेड मी, मैंने कर ले मेरा बेटा फ़ोन कर ले। इसमें क्या हो गया? Cute।
मैंने फोन किया, मैंने बात करी, एंड यू नो शी सेड आई एम 62 एंड आई एम स्टिल स्टडिंग पीएचडी इन दिस। आई वाज सो सरप्राइज्ड। It's so nice. मैंने कहा अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं यार, 24-23 साल में पढ़ाइयाँ नहीं हो रही। पता है क्यों? पता माँ है? बाप पीछे पड़े हुए नहीं हैं। पता पढ़ है, लो। क्योंकि तुम्हारे पे प्रेशर डाल रहे हैं. The people who are choosing to start studying after 40, after 50, after 60, they have the desire to do it. हम्म। चलो भाई आगे चलते हैं. एंड द Philosopher says, गुड न्यूज इज जब मैंने उनके साथ रहना शुरू कर, बात करनी शुरू कर दी थी, आई यूज्ड टू आस्क हाउ वो कैसे करती हैं वगैरह वगैरह। आई माई मैक्सिमम फुटस्टेप्स गॉन 21K। how? मतलब 2-3 महीने बाद हुए थे, एक ही बार ही हुए थे बस। उस दिन तो पसीना निकल गया ना, बट हाँ, लाइक माइंडेड लोगों के बीच में रहने से वो हो गया था। Yes, that's आई what. वॉज सर्चिंग फॉर मोर, बट मेरे को एक ही मिला था। There are so many people who walk so many steps. मेरे को तो पसंद ही नहीं था उस ग्रुप में रहना एट लास्ट. कि भाई मेरे को नहीं करना ये, फिर से इतने सारे सारे स्टेप्स चलते हैं. आई फील सो स्मॉल. आई डोंट वांट टू बी. चलो. So the youth says, unfortunately, I did not. I just took care of my studies for school and for exams in a routine way. Philosopher. I see. All right, I will talk about this from the basic stance of Adlerian psychology. When one is confronted with the task of studying, for instance, in Adlerian psychology, we consider it from the perspective of whose task is this? Whose task? Youth asks. Philosopher. Where the child studies or not, whether the child studies or not, whether he goes out and play with his friends or not. Essentially, this is the child's task, not the parent's task. Youth. Do you mean that it is something the child is supposed to do? Philosopher. Simply put, yes. There would be no point if the parent studied instead of a child, would there? जाना तो एग्जाम देने बच्चे नहीं है. जिंदगी बननी तो बच्चे की ही है. मम्मी पापा सिर्फ बोल सकते हैं, वो आपकी सो इट्स लाइक इफ यू आर thirsty, I can't drink water for you. You will have to drink water for yourself. If you are hungry, you will have to eat food. I can't eat food for you. Likewise, if you need to study and become something in life, you have to study for yourself, not I. I can study for my own sake. एंड एक और बात बताऊं, बड़े सारे लोग ना मंदिरों में गुरुद्वारों में पाठ रखवाते हैं. एंड व्हेन इन आवर फैमिली वी गेट दिस डन ना, आई आस्क देम सिंपली, जो पाठ कर रहा है उसका बढ़ रहा है, आपका नहीं बढ़ रहा. यू हैव टू सिट एंड डू इट. यू आर राइट। एंड इसमें ना ये भी एक होता है दैट अगर हम, मतलब जो भी हाईली एलिवेटेड सोल है घर पे, अगर वो दूसरी सोल को ब्लेसिंग्स देना शुरू कर दे तो ब्लेसिंग में सारी शक्तियां हैं। यस एब्सोल्युटली. मतलब दिस आई हैव लर्नड इन ब्रह्मा कुमारीज का बुक। यू नो, ब्रह्मा कुमारीज में ना सोल की एक एक पावर के बारे में डिटेल में बताते हैं कि कैसे लेनी है, नॉलेज देते हैं बेसिकली। एंड प्रैक्टिस जैसे हम यहाँ पर करते हैं ना माइंडसेट क्लासेस में, सेम वैसे ही कराते हैं वहाँ पे भी। बट दे से दैट यू, इफ यू कैन नॉट वर्क ऑन दीज 8 पावर्स, स्टार्ट ब्लेसिंग योर सेल्फ एंड पीपल, बिकॉज ब्लेसिंग देना बहुत मुश्किल होता है एक टाइम के बाद। हम्म. उसमें सारी पावर्स अपने आप आ जाती हैं, बिकॉज वंस वी स्टार्ट ब्लेसिंग आर सेल्फ व्हेन वी आर नॉट प्रोडक्टिव, once we start blessing others when they are kind of doing the things which are not in our favor, when we start blessing to what we say, technology we are using, because without technology we cannot have anything, Yes. sessions and everything. When we start saying to God, you know, you are the biggest blessing in my life, that I know I have faith in you because you are highest of all, last में आपके पास ही आना है, because there are so many people who are seeking God but they do not know that God का प्यार ऐसे ही मिल जाता है when we are feeling blissful. Absolutely, absolutely. So the way youth says, well, no, they wouldn't. Philosopher. Study is the child's task.
A parent's handling of that by commanding the child to study is, in effect, an act of intruding on another person's task. One is unlikely to avert a collision in this way. We need to think with the perspective of whose task is this, and continually separate one's own task from other people's task. So I still know कि किसी दिन तो I'm like, tired of seeing my kids not studying. So I'll ask my middle child. I'll ask her, Angel, should I ask you something? And she's like, don't ask me. I have all the plans how to study and what to study at what time. If you ask, I'm not going to study, I'm sure. I'm like, okay, I'm not asking you. क्योंकि उसको पता है कि मेरा जो काम है मैं कर लूंगी. बट मम्मी अगर डंडा देके बोलेगी कि कर क्यों नहीं रही, पढ़ क्यों नहीं रही, पढ़ क्यों नहीं रही, एग्जाम है कल, पढ़ ले. तभी उसका दिल एक और दिमाग एकदम उसमें ऑपोजिट डायरेक्शन चलेगा. नहीं, मेरे को जबरदस्ती करे, मैं नहीं करती. I was learning about who is the richest person in the world. I came to know he's Elon Musk. And I was just knowing what is his main, what we say, virtue in him कि he is a billionaire. मतलब the biggest in the whole world. सबको मिला के. So I came to know his biggest power was reverse psychology. Biggest power. And Yes. I was reading about reverse psychology, and when I was reading उसमें था कि he is some person जो टेस्ला की बुक्स, टेस्ला की कार्स बेचता है समथिंग. He says don't buy and people buy. यस. आप He अपने says it बच्चों is को not बोल के good. देखो ना. आपको अगर मैं बोल दूं बेटा मैंगो नहीं खाना, और अब तो मैं जरूर खाऊंगी. It is like मैंगो that feeling. खाने का मन कर रहा है, बेटे लाइट नहीं जलानी, नहीं मेरे को तो करनी है. दिस इज हाउ वी ऑपरेट. मैं बोल दूं हाँ. बेटे पेन से नहीं लिखना है, रेड पेन से मत लिखो. आज रेड पेन से बहुत ज्यादा मन कर रहा है लिखने का. मुस्कान आज पढ़ाई नहीं करनी है. अरे ऐसे कैसे नहीं करनी, मेरे तो 2 दिन बाद एग्जाम है, मैं तो करूंगी, मैं बेशक 5 पेज करूं पर करके सोऊंगी. Like this ना, I what I was remembering, एक दिन ना मेरा भाई गाड़ी चला रहा था एंड मेरी मम्मी आगे बैठी हुई थी, मैं पीछे बैठी हुई थी एंड ही वाज ड्राइविंग सो फास्ट. माय मम्मा वाज लाइक एक दिन मेरे को ना दिल का दौरा पड़ जाएगा तो इतनी फास्ट गाड़ी चला रहा है. एंड आई वाज लाइक भाई और तेज और तेज और तेज, इसको भी पीछे छोड़ दे, इसको. एंड उसने गाड़ी स्लो कर ली. इट यस. हैपेंड. मेरे को मतलब ब्रह्मा कुमारी इसका भोजन आता है. ही थिंक्स ही विल बिकम ब्रह्मा कुमार इफ ही विल ईट इट. आई सेड ये वाला खाना तो बिल्कुल मत खाइयो, इसमें जादू है. इसमें जादू है. लाइक जाना मम्मी खाना दो ना मुझे, ये सैंडविच आधा आधा दे दो मुझे भी. सो हाँ नहीं, इट दिस वर्क. इज दिस इज व्हाट हैपेंस अगर मेरे घर में भटूरे छोले आएंगे. सो टुडे ओनली आज बने थे. हैपेंड, टुडे ओनली दिस हैपेंड. है ना, भटूरे छोले आने थे. एंड देन माय डॉटर आज आपके लिए ऑर्डर करने हैं. आई सेड नहीं मम्मी आप नहीं खाओगे. मैंने कहा बेटा कितना और मोटा होंगी, आई डोंट वांट टू हैव, आई विल सी व्हाट आई नीड टू ईट, आई एम नॉट ईटिंग भटूरे छोले. एंड देन शी इज लाइक अच्छा ठीक है. देन माय हस्बैंड वाज ईटिंग, इज तू क्यों नहीं खा रही है, हैव इट विद मी. मैंने कहा पागल हो के क्या चाहते हो, मुझे नहीं खाना है. एंड इफ माय हस्बैंड वुड हैव सेड दैट किसी के लिए नहीं बनवाना, ऑर्डर इट फॉर ऑल ऑफ अस, शी विल हैव सम फ्रूट्स और शी विल हैव पोहा और समथिंग, आई वुड हैव सेड क्यों, मेरे लिए क्यों नहीं. दैट इज हाउ पीपल ऑपरेट. यस. This is really powerful. I want to learn about reverse psychology. In as we have completed that book, Eat the Frog by Brian Tracy, I do not know what next book we will start. If it can be about reverse psychology, it will be a blessing. आपको मैंने ऑप्शन दी है, उसमें बुक रीडिंग क्लब में बोला है कि गिव मी सजेशंस. इफ यू डोंट गिव मी सजेशंस, आई ब्रिंग आउट माय ओन माइंड. आई से मुझको तो ये पढ़नी है, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. We आई can read स्टार्टेड the रीडिंग वन न्यू बुक टुडे माई सेल्फ. which one? आई हैव a certification of face reading as well. Huh. I had ordered a book long Wow. and I could not read it. So I started reading it today. कि भाई करिश्मा 4 बजे से 7 बजे तक वेली बैठती है, आजकल कोई बुक रीडिंग क्लब नहीं चल रहा, आजकल कोई सेशंस नहीं चल रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, लेट्स स्टार्ट दिस. Amazing. Amazing. The face reading is about astrology something. नहीं नहीं, योर फेस डिपिक्ट्स
things about you? What kind of a person, your character? If you are open to tell about me a little bit. I will share later. Okay. So, the youth says, how does one go about separating them? Philosopher. One does not intrude on other people's tasks. That's all. Youth. That's all. Philosopher. In general, all interpersonal relationship troubles are caused by intruding on other people's tasks or having one's own task intruded on. Carrying out the separation of tasks is enough to change one's interpersonal relationships dramatically. Now, Miss Khan keeps telling her mom कि आप बेकिंग क्यों नहीं करते हो, आप बेकिंग क्यों नहीं करते हो, what will she say? मैं कर लूंगी ना मुझे जब करना होगा. I don't want to do. हाँ. Hmm. You can't. You need not intrude in anybody's task. It is her task. She will do it. Yes, you're right. But on the contrary, we as coaches, what do we do? जब मैंने बोला कि मुस्कान अगर आप पढ़ोगे नहीं, अगर आपकी पीपीटी नहीं बनेगी, you have to transfer that much amount. I was intriguing, right? Intriguing. I was intruding into your task, right? Then how does वो that work? वो अकाउंटेबिलिटी थी फॉर प्रोकास्ट, ताकि मैं प्रोक्रेस्टिनेट ना करूं. एंड इट रियली वर्कड आउट इन माय फेवर. आई हैव नेवर इन माय, मतलब मैंने, मतलब मेरे को सच्ची में नहीं पता था मेरी जिंदगी में ऐसा पल आएगा कि मेरे को, ताकि 10,000 रुपये ना देना पड़े तो मेरे को पूरी पीपीटी बनानी है अभी के अभी. आई नो हाउ हार्ड इट वाज. लिटरली मैं Today सोच रही थी, मैंने somebody हाँ तो बोल दिया. मैं जूम के सेशन से भी चली गई. इतनी हाई एनर्जी थी, और जब मैं अकेले बैठी थी मैं सोच रही थी हाँ, कैसे होगा. Today in the morning session, somebody came and she said, Ki Karishma, I'm not working on my health. Can you suggest me few things? Archana is like, करिश्मा को फिर मौका मिल गया पैसे कमाने का. And I was like, connect to me one on one and I'll tell you how to do it. I don't want to tell everybody about it, how to do it. So, anyway, but that is a very, very good way of putting people into action, right? इट वॉज द बेस्ट बुक आई स्टडीड विद यू. आई रियली एडमायर दैट बुक. मतलब इतना मजा आया. द रीजन वॉज द एप्लीकेशन पार्ट. पहला दिन इतना सुंदर था when you made me do that exercise, गोल वाली. Always, always, always good when you sit with pen and paper and do what actually is said in the book. Otherwise, reading in itself. So these books are like ऐसे यहाँ पे जाने वाली. But there are few books that are action oriented. उसके अंदर तो आप काम नहीं करोगे तो then पावरफुल. it's not of any use. चलो आगे चलते हो. लिखा बहुत सिंपल था उस बुक में, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं लिखा था. बट Exactly. ऐसा लग रहा था कि वो सिंपल चीजें भी हमें पता नहीं है अभी अच्छे से. नहीं, इनफैक्ट पता है, we are not just implementing them. या दिस इज ऑल्सो द अनदर वे, लाइक इट इज ऑल्सो ट्रूथ कि बिकॉज मेरे लिए काफी कुछ चीजें नई भी थी उसमें. Okay. सच्ची बताऊं, 80-20 80-20 बहुत बारी सुना है, बट ढंग से वही समझ आया था. Hmm. Okay. Thank you. All right. तो आगे चलते हैं. Philosopher says in general, अच्छा ये तो पढ़ लिया ना. Carry out the separation of tasks is enough to change one's interpersonal relationships dramatically. Youth. I don't really get it. In the first place, how can you tell whose task it is? From my point of view, realistically speaking, getting one's child to study is the duty of parents because almost no child studies just out of enjoyment. And after all is done, said and done, the parent of the child, a parent is the child's guardian. वाह, मेरी बेटी इसी टाइम पे आई wherein he's saying कि no child studies just for enjoyment and she's like dancing there. Okay. You Philosopher know, says, uh, there was a time in my life when I used to study for enjoyment. हाँ, And मैं दूसरों को पढ़ाती भी होती थी, अपने फ्रेंड्स को. that is what my बट छोटी वाली daughter does. वो पढ़ लेती है and then she calls her friend, मैं तुझे सिखाती हूँ. And then she हाँ, comes to me in the kitchen and she
teaches me as well. Then she goes to her Thais floor, she talks to her Thai. आज मैं आपको ये वाला चैप्टर अपने बायोलॉजी का समझाती हूँ, मेरे पास आएगी केमिस्ट्री का एक चैप्टर सुना देगी, क्योंकि शी अंडरस्टैंड्स कि एक चैप्टर से ज्यादा कोई मेरी सुनने नहीं वाला है इतना ज्यादा, क्योंकि वो हर चीज को, आपको पता है ये कैसे होता है, फिर ऐसे होता है, एंड देन व्हेन आई लिसन टू हर आई एम लाइक अच्छा फिर ये क्या होता है, एंड देन आई एक्सटेंड इट, बिकॉज आई कीप ऑन आस्किंग मोर क्वेश्चंस कि अच्छा लाइक चाइल्ड, कि ओ मेरे को तो ये नहीं पता था, हाँ हाँ फिर हाँ। क्या होता है फिर, अरे ये कैसे होता है, एंड देन इट द कंसेप्ट गेट्स इवन क्लियरर टू हर, एंड देन शी इज लाइक ओ ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, तो सही एक मिनट इज ए में देख। मेडिकल स्टूडेंट? नो, केमिस्ट्री? नहीं नहीं, मैं तो बड़ी प्यार से आराम से कॉमर्स स्टूडेंट थी। योर किड? माय डॉटर शी इज इन नाइन्थ, द वन हु ओके। टॉकिंग अच्छा, अबाउट। उसमें भी तो साइंस में 3 जगह में डिवाइड हो जाता है हाँ, वो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। क्योंकि ना मैंने मेरी ऊपर अभी मैं गई थी ना वहाँ पर, फर्स्ट फ्लोर पे अपनी लाइब्रेरी में, वहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक्स भी रखी हुई हैं। मेरी मम्मा ने ना मेरी सारी बुक्स रखी हुई हैं। शी हैज़ नॉट अलाउड मी टू गिव इट टू व्हाट वी से। कहाँ देते हैं हम? अम, क्या बोलते हैं उसे जो आता है बुक्स लेने के लिए? चाहे रद्दी वाला, रद्दी वाला। गद्दी वाला। तो शी सेड कि मुझे कि शी आई वाज गिविंग इट वंस, आई रिमेम्बर शी सेड कि बुक्स तो संभाल के रख। लिटरली मेरी 9th 10th 11th सारी पड़ी है मेरे पास, इसलिए मेरी लाइब्रेरी खड़ी पड़ी है। ओह नहीं, आई हैव स्टार्टेड गिविंग देम अवे, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे रखने से भी ये सब कोई खोल के रखने नहीं वाले हैं। दे विल मैंने स्टडी देयर कभी ओन नहीं बुक्स, दे विल खोली। बाय देयर ओन बुक्स। मैंने कभी नहीं खोली वो किताबें। इन द एमबीबीएस टाइम ऑल्सो, हाँ मैंने एक टाइम पे सोचा था जॉब करने के लिए। वाइल आई वॉज डूइंग एमबीबीएस आई गॉट द जॉब ऑल्सो इन 1,16,000, जो नीट यूजी के बच्चों को पढ़ाने के लिए मिली थी, मुझे दिल्ली में मिली थी। एंड आई वॉज लाइक, मैं पहले तैयार हो गई थी करने के लिए। ऑल द किड्स वर हैप्पी स्टडिंग फ्रॉम मी। आई वॉज अ टीचर देयर बिकॉज मेरा सारे कॉन्सेप्ट फ्रेश थे 11th 12th के। एंड आई हम्म। वॉज डूइंग इट बिकॉज कॉलेज में मज़ा नहीं आ रहा था। आई वॉज फीलिंग लाइक कुछ नया करते हैं, बट देन फिर वो ऐसा था, अप डाउन का चक्कर पड़ गया था फ्रॉम नोएडा टू दिल्ली। एंड आई वॉज लाइक रहने दो मुस्कान, यू स्टडी और एमबीबीएस वाली पढ़ाई ही। एंड देन आई वॉज, बट ना अंदर आई वॉज सीकिंग सम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जब हम आई वॉज लर्निंग दिस, यूएस के किड्स में ना 7th 8th क्लास में ही सेल्स सिखा देते हैं। हम्म। 7th 8th क्लास में ही दे मेक देयर चाइल्ड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। दिस इज सो इम्पोर्टेंट। 20 22 साल के होने के होता है ना, बाद। तो जूस बना के एक उसके अंदर दे देते हैं, एंड गो एंड सेल दिस जूस। हाँ ऐसे होता है। हाँ, मतलब रसना बना दो एक बड़े टैंक में, है ना, जस्ट कीप गिविंग पीपल $5 $2 $1 $1 $1, एंड दे एंड कलेक्ट मनी। दिस इज सो बेस्ट एक्टिविटी आई विल से। मतलब सबसे बढ़िया है कि बचपन में ही सेल्स सिखा दो। ऑल राइट, आगे चलते हैं। Philosopher says there is a simple way to tell whose task it is. Think who ultimately is going to receive the end result brought about by the choices that is made. That is why I said कि मैं अगर वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू अर्न मनी विद देयर एजुकेशन। दे आर द ओनली वंस जो जाएंगे जहां पे जॉब मिलेगी, दैट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे हैव गॉट, एंड दे एक्चुअली हैव पुट इन द हार्ड वर्क इन इट। इट्स नॉट मी हु कैन डू एनीथिंग अबाउट, राइट। तो इसीलिए आई कीप ऑन टेलिंग ठीक है अपनी मर्जी है भाई, जितना पढ़ना है पढ़ लो, योर चॉइस, बिकॉज इट इज देयर्स टू चूज, इट इज देयर एक्ट, इट्स नॉट माइन। मैं जो पढ़ूंगी उसका मैं कमा लूंगा, बट आई कांट फॉर देम। When the child has made the choice of not studying, ultimately the end result is that decision not being able to keep up in the class or to get into the preferred school, for instance, does not have to be received by the parents. Clearly, it is the child who has to receive it. In other words, studying is a child's task. Youth. No, no, you are completely wrong. The parent, who is more experienced in life and also acts as a guardian, has the responsibility to urge the child to study so such situations do not arise. This is something done for the good of the child, and it is not an act of intruding. While studying may be the child's task, getting the child to study is parents' task. Philosopher.
It's true that one often hear parents today using the phrases, it's not, it's for your own good. But they are clearly doing so in order to fulfill their own goals. Hmm. Are we on the same page here? But I'm on, you are listening what you are telling. Acha, ji. Fulfill their own goals, which could be their appearance in the eyes of society, their need to put on the airs, or their desire for control, for example. In other words, it is not for your own good, but for the parents. And it is because the child senses this deception that he rebels. So हम लोग सच्ची बताएं तो why do people do this? पेरेंट्स जब बोल रहे हैं ना, उनको क्या फायदा होने वाला है उससे? आर दे गोइंग टू हैव समथिंग? इज देयर समथिंग गुड इन इट व्हेन दे आर टेलिंग द चाइल्ड जबरदस्ती पढ़ो पढ़ो पढ़ो? नहीं। बट हाँ, एक गुड है, जब सोसाइटी में बताएंगे मेरे बच्चे के 92% आए हैं, मेरे बेटे के ना 97, माय चाइल्ड स्कोर्ड 100 on 100 इन इकोनॉमिक्स। हु इज विनिंग? Really? नॉट माइन, मेरे ब्रदर इन लॉ के। हाँ, मेरे तो माय डॉटर गॉट 92। Like, एक बारी मेरे साथ हुआ था इन 10th क्लास. आई वॉज यूजिंग सोशल मीडिया लॉट. फेसबुक पे ना जो भी मन में आता था मैं डाल देती थी. एंड मेरी मम्मी का एक पूरा फ्रेंड सर्कल था. एंड वहाँ पे वो अपने बच्चों की बातें करते होंगे. तो मेरी मेरी बारे में ये बातें होती थी कि मुस्कान फेसबुक पे पोस्ट बहुत डालती है. एंड माई मदर वॉज लाइक, ही वॉज कमिंग आफ्टर हर किटी पट्टी एंड सेइंग मी, मुस्कान थोड़ा फेसबुक कम चला लिया कर, तू सब कुछ डाल देती है जो तू फील कर रही है. आज मैं सैड हूँ, मेरा चॉकलेट खाने का मन करे, तूने ऐसे डाली. मैंने कहा मम्मी मेरे मन में जो आया मैंने डाल दी. तो शी सेड कि यू हैव टू चेंज योर ट्यूशन एंड अब स्कूल के टीचर पे ट्यूशन लगाओ. आई वॉन्ट कि 10th क्लास में यू ब्रिंग योर 10 CGPA. एंड मेरे को जो ट्यूशन टीचर पसंद भी नहीं, मम्मी ने मेरी ट्यूशन वहाँ लगाई बिकॉज मम्मा वॉज थिंकिंग कि क्वेश्चन पेपर तो वही बनाएंगे एंड शी विल गेट गुड मार्क्स. मम्मी की बात मान के अच्छा बच्चा बन के, आज्ञाकारी बच्चा बन के मैंने ट्यूशन लगा ली वहाँ पे. एंड आई गॉट 10 CGPA. वाओ। शी वॉज सो हैप्पी एंड शी वॉज सेइंग, देखो मेरी लड़की. हाँ, वो पर में फेसबुक नाम आया 10 CGPA आई है. पे, देन शी वुड हैव अनदर लेवल ऑफ प्राइड। मेरी बेटी तो फेसबुक पे डालती थी, तुम लोग बोल रहे थे देखो शी गॉट 10 CGPA। हाँ सच्ची में ऐसा हुआ. आई रिमेम्बर नाउ. एंड आई केम टू नो वो ट्यूशन भी मेरी इसलिए लगी थी बिकॉज शी गॉट ट्रिगर्ड फ्रॉम हर फ्रेंड्स कॉमेंट्स. सो इट That's हैपेंस. so youth says, so even if the child hasn't been studying at all, you are saying that since it is his task, I should just let him be. Philosopher, one has to pay attention. Adlerian psychology does not recommend the non-interference approach. Non-interference is the attitude of not knowing and not even being interested in knowing what child is doing. Instead, it is by knowing what the child is doing that one protects him. If it's studying that is the issue, one tells the child that that is his task and not let him know that one is ready to assist him whenever he has the urge to study. But one must not intrude on one's child's task. When no requests are being made, it does not do to meddle in things. Youth. Does this go beyond parent and child relationships? Philosopher. Yes, of course. In Adlerian psychology, counseling, for instance, we do not think of the clients changing or not changing as the task of a counselor. Youth. What are you saying here? Philosopher. As a result of having received counseling, what kind of resolution that does the client make? To change his lifestyle or not? This is the client's task and the counselors cannot intervene. Youth, no way. I can't accept such an irresponsible attitude. Philosopher, naturally, one gives all the assistance one possibly can. But beyond that, one doesn't intrude. There is a saying that goes, you can lead a horse to water, but you can't make him drink. Please think of counseling
and all other assistance provided to other people in Adlerian psychology is having that kind of stance. Forcing change while ignoring the person's intention will only lead to an intense reaction. Youth. The counselor does not change the client's life. Philosopher. You are the only one who can change yourself. You are the only one who can change yourself. On that note, इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स बोल सकते हैं, वो पेरेंट्स का काम है टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन देयर चाइल्ड्स लाइफ, बट Yeah, it is so important. यू कैन नॉट जस्ट You, लेट गो कि हाँ ठीक है स्मोक कर you रहा know, है तेरे को पता। नो। really, जब मेरे घर पे I was having a clash between me and my parents, I said to my parents, this is a new generation, have a parenting coach. मेरी ये बात भी हुई थी. Literally, I had one-to-one with them conversation. कि this is a new generation. This is a generation of artificial intelligence. This is a generation where circumstances are not very different. It's not like at your generation. You cannot anchor your parents यस। how they have treated you, and you know, they, they scolded me. Of course, they don't know they need parenting coaches. And How I, do then you then know? I had a parenting coach. Ah, wow. फिर मैंने पेरेंटिंग कोच से बात करी. मैंने कहा, आई कैन नॉट नो, आई डू नॉट नो हाउ टू काइंड ऑफ हैव अ good relation with my parents right now because they want to rule, they want to control over my life, and I want freedom. And then she said me very beautiful one line. She said me, Muskan, do one thing, because I am a soul who finds solutions in coaches now. I literally invest in learn. So what she said me, Muskan, healings are needed, and what you do right now, you tell every single thing in detail what is happening in your career and in your studies. भले ही वो सुनना चाहते हैं नहीं चाहते, you go and you tell. मैंने करना शुरू कर दिया. एंड द मोमेंट मैंने करना शुरू कर दिया, दे वर लाइक आस्किंग मी, अच्छा इसके बारे में भी बता दे, इसके बारे में बता दे, एंड सूनर और लेटर रिलेशनशिप गॉट healed. And I started focusing on me more. I was like, let me show the evidences in front. मैंने हैबिट ट्रैकर लगा दिया जिसमें मेरी सारी रिपोर्ट्स हैं, कितना पढ़ाई हो रहा है कितना नहीं हो रहा है. सेशंस होते हैं तो उसकी फ़ोटोज़ मेरे इंस्टाग्राम पे होती है. दे आर स्पाइंग इंस्टाग्राम भी. ये किया इसने आया, लिटरली कभी नहीं देखा लाइफ में, कभी नहीं देखा. दिस टाइम दे आर वॉचिंग मी. They want to see what our daughter is doing. They want to know what is she doing, and they're not unconcerned. They're like, अच्छा ये भी कर रही है, वो ये भी कर रही है, ये तो ये सारा दिन पढ़ती है. I don't know what is their perspective. They have not shared with me. They always say that focus only on studies. But right now, I know that till the time I'm having a guidance over me, the relation will smoothen over time because this path is cleared in front of me, not in front of my parents. धीरे धीरे करके मैंने पापा को मना भी लिया. दिस इज सम कॉन्फ्रेंस हैपनिंग अप्रैल में, विल यू कम विद मी? ही सेड यस आई विल कम. हाँ, मैं कहा wonderful. साथ चल लो. बट Seed, अभी बुकिंग कुछ नहीं हुई seeding, है. seeding is the only way to go it. हाँ, मैंने पापा को बोला. एक्चुअली ना पापा वेंट टू सम बिजनेस कॉन्फ्रेंस इन जोधपुर फॉर 2 days. आई लाइक, पापा इमेजिन अगर कोई आपको जाने ना देता कॉन्फ्रेंस में. ही वाज लाइक, तेरे को क्या हो गया? मैंने कहा, मेरी भी बिजनेस कॉन्फ्रेंस है. That's how things work, actually. Actually, that's how things work. And by the way, just for your information, I'm also a parenting coach. I'm a हाँ, coach as well. अमेजिंग. मैंने तो वहाँ पे रिलेशनशिप कोच सुना था, मैं देखा बहुत था. मैंने बट कोच द चलो, we will wrap up right here. Take care of yourself. Thank you, Muskan, for joining in. And it was a cute discussion, I would say here. कि मम्मी पापा पढ़ने के लिए बोलते हैं क्यों नहीं कहते, and we understood the concept of doing our own tasks as well, separating the task as well, right? Thank you for joining in. Have a good night. God bless you and take care. Bye.